Hello dear students, this is Seema and today I am going to explain you class 10th first flight book second chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This lesson is an extract of Nelson Mandela's autobiography titled Long Walk to Freedom. Here we find a description of an inauguration ceremony. It was a very pleasant occasion when his African National Congress Party won 252 seats out of 400 seats in the first democratic election in South Africa. The inauguration ceremony took place in Union Building of Pretoria. The ceremony was attended by the politicians and dignitaries of 142 countries, and here Mandela expressed his views towards freedom and its importance. So let's go through the lesson. I will explain you the lesson line by line and will give you the meaning of difficult words too. So students, here we have the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. The full name of Nelson Mandela was Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, so here we should read the lesson. I will explain you line by line. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. That means this is the 10th May. 10th May की सुबह बहुत ही सुंदर डाउन ब्राइट मीन्स बहुत ही सुंदर सूर्योदय था उस समय का 10th May का. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. This is the word besieged. Besieged means laid और siege जो बहुत ही चारों तरफ से घेरा हुआ हो. फॉर द किन लोगों से घेरा हुआ था वहाँ पर? Dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. उस inauguration को अटेंड करने के लिए बाहर के 140 देशों के डिग्निटरीज, बड़े जो महान लोग थे और बड़े लीडर्स थे, नेता लोग थे, राजनीतिज्ञ थे, वे सब उस सेरेमनी को अटेंड करने आए थे. इनाग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए थे 10th मई की सुबह को. Besieged means I said to be surrounded closely. चारों तरफ से कोई हॉल जो कि इनाग्रेशन के लिए सजाया गया हो और वो चारों तरफ से घिरा हुआ हो महान डिग्निटरीज से और लीडर्स से. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये इनाग्रेशन किस चीज़ का था? दक्षिण अफ्रीका की जो सॉइल थी, भूमि थी, वहाँ पर एक उद्घाटन समारोह हो रहा था जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नेता, इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे और उनका वहाँ पर जमावड़ा हो गया था, गैदरिंग हो गई थी. ठीक है. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और ये कहाँ पर हो रहा था? ये समारोह प्रिटोरिया के एक संयुक्त बिल्डिंग थी, है ना, यूनियन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, है ना, यूनियन बिल्डिंग की प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग है, वहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा था. फॉर डिकेड्स दिस had been the seats of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट. मतलब इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो भेदभाव करने वाली गवर्नमेंट थी. वहाँ पर भेदभाव होता था वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में. तो अब जो गैदरिंग हुआ था, अब जो इनाग्रेशन हो रहा था, एक सेरेमनी हो रही थी, नई सरकार चुनी गई थी और वो सरकार थी नॉन रेशियल गवर्नमेंट. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zenani on the podium. Mr. D. Clark was first sworn in and second deputy president. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो जो लवली ऑटम डे था, उस दिन उनकी बेटी उनके साथ
खड़ी थी, उनकी बेटी ज़ेनानी उनके साथ में खड़ी थी, उनका साथ दे रही थी. शी accompanied her father. मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president. और सबसे पहले मंच पर डी क्लार्क को बुलाया गया, उनको उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. Thumbo Mbeki was sworn in as first deputy president when it was my turn. अब सेकेंड चांस था थम्बो मिबेकी, उनको एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाई गई. और उसके बाद अब मेरी टर्न थी. I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. फिर मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने संविधान की रक्षा करने का, उसका पालन करने का और जनता के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. और फिर वहाँ उपस्थित सारे गेस्ट्स को और जो संसार के लोग मुझे उस समय देख रहे थे, उन सबको मैंने संबोधित किया. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. मैंने उनसे कहा, आज हम यहाँ पर उपस्थित अपनी नई स्वतंत्रता, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, उसको एक नई आशा प्रदान करते हैं, उसको एक नई शान प्रदान करते हैं हम. Out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. हमें एक बहुत लंबा अनुभव हुआ है किस चीज़ का? ह्यूमन डिसास्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत लंबा था. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड. और इतने लंबे डिसास्टर के बाद जब हमको ये स्वतंत्रता मिली है हमारी, तो हमारे लिए एक ह्यूमन बींग्स के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है. हम मानवता के लिए गर्व की बात है. We who were outlawed not so long have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद जब हम अपने ही देश में बहिष्कृत हुए, और हमें उस लंबे समय के बाद जब हमको अपना अधिकार प्राप्त हुआ, हम अपनी भूमि पर दूसरे देशों के लोगों को एज अ गेस्ट हम स्वागत करते हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. इसके बाद वे कहते हैं कि हम यहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित जितने भी गेस्ट्स हैं उन सभी का स्वागत करते हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश की जनता के साथ, उनके न्याय के साथ, उनकी शांति के साथ और अपनी मानवीय गरिमा के साथ हमारी विजय को सेलिब्रेट करने आए हैं, हमारी डिग्निटी को, हमारी महानता को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. Emancipation, here we find one new word, emancipation. Emancipation means freedom from restriction. हर किसी चीज़ में जब रोक टोक हो या फिर किसी चीज़ की आज़ादी ना हो, तो उससे हमें जब मुक्ति मिल जाए, दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेशन, है ना. फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मुक्ति, आज़ादी, या फिर हम इसी को कह सकते हैं फ्रीडम. We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation मिल गया हमको. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और अब हम अपने ही देश के लोगों को अब उस उत्पीड़न से जो उन्होंने इतने सालों तक सहन किया है, डिप्राइवेशन से, सफरिंग से. डिप्राइवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट. उनको उनके जो अधिकार थे, उनको जो अभी तक सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, उन सब से वो डिप्राइव हुए थे, सफ़र कर रहे थे, उस सब से उनको आज मुक्ति मिली है. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल गेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. वन न्यू वर्ड अगेन वी फाइंड हियर, ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स जब किसी को बहुत ज़्यादा
क्रूएलिटी के साथ दबा दिया जाता है ना, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। सो अब ये ऑपरेशन कभी 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 नहीं होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। The sun shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि का सूरज, दिस ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इस ह्यूमन अचीवमेंट का ग्लोरियस उपलब्धि का सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा। सन शेल नेवर सेट एंड लेट फ्रीडम रैन, गॉड ब्लेस यू। और हमारी स्वतंत्रता का शासन हमेशा बना रहे, हम सभी को भगवान अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें और उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन awe as a spectacular array of South African jets। कुछ ही क्षणों के बाद सबकी आंखें ऊपर उठी और हम सब ने डर से अपनी आंखें ऊपर उठाई, जैसे दक्षिण अफ्रीका की जेटें, हेलीकॉप्टर्स तथा जो भी सैनिक थे, jet helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the union buildings। वो जो यूनियन बिल्डिंग्स जहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, उसके ठीक ऊपर सबने एकदम से आंखें ऊपर की और देखा कि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की जेट फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स, सैनिकों को ले जाने वाले भव्य युद्ध वायुयान, ये सब उस इमारत के ऊपर से उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल एक सजावट नहीं थी, ये केवल एक दिखावा नहीं था, ये कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जो निष्ठा होती है एक सैनिक की, वो दिखाई जा रही थी। दिस इज द प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। प्रिसीजन मीन्स उनका जो अपने देश के प्रति सम्मान है उसको वे सैनिक शो कर रहे थे। But a demonstration of military loyalty to democracy, to a new government that had been freely elected। केवल कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीका की जो सेना थी, उनके जनरल्स, पुलिस, उनकी छातियां पिछले दिनों पद को से अलंकृत थी। उन्होंने मुझे सलामी दी और वफादारी का वचन भी दिया। जो पिछले कुछ दिनों पहले जो प्राउडली हमसे काम करवाते थे, उन्होंने अब हमें सलामी दी और हमारे अंडर में काम करने का वचन दिया। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक with ribbons and medals from days gone by, salute me and pledged their loyalty। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो पहले जिनके अंडर में हम काम करते थे और वे हमें ह्यूमिलिएट करते थे, है ना, डिप्राइव करते थे, सफरिंग देते थे, उन सब के सिर अब झुके हुए थे और वे हमारे अंडर में काम करने के लिए तैयार थे। वे हमें सैल्यूट कर रहे थे, हमें प्लेज कर रहे थे और हमारी लॉयल्टी को सलाम कर रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मुझे वो दिन याद है जब उन्होंने न सिर्फ मुझे अरेस्ट किया था, बल्कि सैल्यूट करने के लिए कहा था, बल्कि मुझे अरेस्ट भी किया था। फाइनली अ शेवरन ऑफ एम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और उन्होंने हमारे साउथ अफ्रीकन फ्लैग के ऊपर एक काली, लाल, हरी, नीली, सुनहरी ऐसे धुएं के आकार की लकीर को भी हम जो जेट एम्पाला जेट जो वायुयान उड़ रहे थे हवा में, उन्होंने बाद में इसको रंग बिरंगी जो धारियां हैं उससे हमारे फ्लैग को सुशोभित किया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stam, the old anthem of Republic, although
that day, neither group knew the lyrics of anthem they once despised. They would soon know the word by heart. That means जब सेरेमनी ओवर हुई तो वहाँ पर दो नेशनल सॉन्ग गाए जा रहे थे, एक वाइट पीपल के और दूसरे ब्लैक पीपल के। तो दोनों ही जो नेशनल सॉन्ग्स थे उनको साथ में उनकी धुन को गाया जा रहा था। और ये एक बहुत ही दिव्य दर्शन था कि गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान और नया राष्ट्रगान एक साथ गाया जा रहा था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the word by heart. Here we find one new word, despised. Despised means had a very low opinion of, है ना। That means कि यहाँ पर लो ओपिनियन इन द सेंस कि किसी को घृणा की दृष्टि से देखना या हेट्रेट की दृष्टि से देखना। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो उद्घाटन समारोह था ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी, सभी के मन को मोह लिया था इस घटना ने। और इस घटना में कुछ जो दुखी एंग्लो बोयर युद्ध के कुछ वर्षों बाद जब अफ्रीका में श्वेत लोगों ने हमारे विवादों को दूर किया और अपने देश के अश्वेत लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व कायम किया, तो हमारी जो आंखें हैं वो गर्व से भर गई। और उन्होंने इसके पहले जो हमें घृणा की दृष्टि से देखा, हमें सफरिंग्स दिया, उन सब से हम मुक्ति पा गए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। उस इनॉग्रेशन वाले दिन भी मुझे अपना इतिहास याद आया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। और मुझे वो सारे दिन याद आए जो कि अमानवीय असामाजिक संरचनाओं पर आधारित थे और जिससे कि आज विश्व पूरी तरह से परिचित है, जिसके बारे में सबको पता है। One on the day of the inauguration was overwhelmed with a sense of history, war before my own birth. Up their differences and erect a stem of racial domination against the dark-skinned people of their downland। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, जैसा कि मैं दूसरे दिनों में कभी महसूस करता हूँ, कि मैं केवल उन्हीं अफ्रीकी देशभक्तों का यहाँ पर योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। वह लंबी और सम्मानजनक पंक्ति समाप्त हो गई है और अब फिर से मेरे साथ शुरू हुई है। दुखी था, इसलिए मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका और वे ये सेरेमनी को देख नहीं सके। उनके बलिदानों के पश्चात हमें ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई। तो नेल्सन मंडेला उन सभी लोगों को याद कर रहे थे जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, लोकतंत्र को प्राप्त करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन सबको उस समय वे याद कर रहे थे और रो रहे थे। सो ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a stem of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो इस उद्घाटन समारोह पर मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत था, इस ऐतिहासिक भावना से अभिभूत था कि 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दुखद एंग्लो बोअर युद्ध हुए थे और उसके पश्चात मेरा जन्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने अपने विवादों से हमें दूर कर दिया था और देश के अश्वेत लोगों के विरुद्ध उन्होंने जातीय प्रभुत्व कायम कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जिस संरचना का उन्होंने निर्माण किया था वो बहुत ही अमानवीय थी, असामाजिक थी और जिससे पूरा विश्व परिचित था। Now in the last decade of 20th century, in my own 8th decade, as a man, that system had been turned forever and replaced by one that recognized the right and freedom
of all people regardless of the color of their skin. और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब एक मानव के रूप में मैंने अपने 8वें दशक में उस प्रणाली को हमेशा के लिए पलट के रख दिया, बदल के रख दिया है, जो लोगों की त्वचा की अपेक्षा सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करते हैं। इसके पहले उनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था स्किन को लेकर के। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। और उस दिन मेरे अपने लोगों की बहुत से मेरे जो परिचित थे, मेरे अपने लोग थे, उनकी ऊपर जो उनका जो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस था, उन सबको, उनकी सफरिंग्स को, उनके करेज को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और उस दिन मैं उन सभी पेट्रियोट्स को याद कर रहा था, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा था, उनकी कष्टों को याद कर रहा था, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और उस दिन मुझे एहसास हो रहा था, मैं उन सभी पेट्रियोट्स को याद कर रहा था अफ्रीका के, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। That long and noble line ended and now began again with me। और वो लंबी लाइन, वो लंबी सम्मानजनक पंक्ति अब समाप्त हो गई और अब फिर से ये मेरे साथ शुरू हुई है। I was spent that I was not able to thank them and that they were not able to see that their sacrifices had wrought। Wrought means old fashioned, means formal हो गए। अब जो चीज़ formal हो गई हो, जिसका अब ज़्यादा क्रेज ना रहा हो, that is called wrought। जिसके परिणाम स्वरूप हमें किसके परिणाम स्वरूप उनकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, पेट्रियोट्स थे, उनकी फाइटिंग के परिणाम स्वरूप आज उन्हें एक स्वतंत्र राज्य मिला है। उनको एक लंबी और सम्मानजनक पंक्ति अब उनकी समाप्त हो गई है, परंतु वे दुखी थे कि जिन्होंने बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, वे अब इनके बीच में नहीं है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, अपार्थाइड मतलब जो रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता था लोगों से, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड। तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो रंग भेद की नीति थी, उसने मेरे और मेरे लोगों के दिलों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर किया। विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। इसका मतलब कि कई दिनों तक हम उन गहरे घावों को लेकर के और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सहन करते जा रहे थे और अपना काम करते जा रहे थे, लेकिन but decades of the operation and brutality had another unintended effect, and that was that it produced। इसका मतलब है कि जब हमें गहरे घाव दिए गए थे, तो उसको स्वस्थ होने में, हमको अपने आप को स्वस्थ करने में कई पीढ़ियां लग गई। और नए दशक में जब इसका उत्पीड़न होना था, इसको समाप्त कर दिया जाना था, उस समय भी ओलिवर टोम्बो और उनके साथ में थे वॉल्टर सिसुलू, फिर चीफ एंथुली और यूसुफ डेड्यूस, देन द ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबुक्वेस। ऐसे लोगों का उन्हीं के साथ में जन्म हुआ था और ये सारे ही लोग बहुत महान कहलाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी उदारता से लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और वे अपनी उदारता और बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डेडो, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट
सुबह के इन लोगों के पेट्रियोटिक बलिदान को आज भी देश याद करता है और उनके साथ खड़ा है. So students, that's all in this video. We will continue with the next paragraph in next part. Thanks for watching.